Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. In this lecture we are going to study about De Morgan's law and properties of sets. First of all, you have to know that what is De Morgan's law and how it could be solved. So De Morgan was a British mathematician who discovered these two properties of sets: A union B over complement is equal to A complement intersection B complement. A intersection B over complement is equal to A complement union B complement. Okay, you have to learn and understand these two properties for further solution. Okay, now move towards our solution. You have already know that how to solve union, intersection and complement. I don't think so that you will face any difficulty during solution of these two sets and properties of sets. Okay, first of all we will solve left hand side of the question, which is A union B over complement. In any question if we have brackets, so first of all we will solve bracket. In bracket we have A union B, so we will solve A union B. Our question is universal set 1 2 3 4 5 up to 20. Set A is equal to 1 2 4 8 10 16 and 20, and set B is equal to 2 6 8 10 14 and 18. Through these sets we will solve these properties. So we will write our set A 1 2 4 8 10 16 and 20. The sign of union, because we are going to find union. Set B 2 6 8 10 14 and 18. In union we will merge both sets together, so we will merge both sets without repeating any element. 1 2 4 6 8 10 14 from this set, 16 18 and 20. This is our A union B. Now we will find complement of this set, A union B over complement. So the formula of complement is A union B over complement is equal to universal set minus A union B. हम यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, A union B over complement. Okay, so first of all we will write universal set, the sign of minus because we are going to find difference of these two sets in complement. The sign of minus and set we will find here, we have find here, sorry, A union B. Now in complement we will minus these set from universal set. 1 2 4 6 8 10 14 16 18 एंड 20 हमने माइनस कर दिए यूनिवर्सल सेट में से, तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा. 3 5 7 9 11 12 13 15 17 एंड 19. दिस इज़ आवर ए यूनियन बी ओवर कॉम्प्लीमेंट. राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुका है हमारा. अब हम करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया है. अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. उसमें है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सो ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए. यूनिवर्सल सेट लिखेंगे हम, उसमें से माइनस कर देंगे हम ए वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स को. तो ए के तमाम एलिमेंट्स हमने यहाँ से माइनस कर दिए. 2 4 1 2 4 8 10 16 एंड 20. ये हमने तमाम एलिमेंट्स यहाँ से माइनस कर दिए. तो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे थे 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 and 19. This is our A complement. Now we will find B complement. Okay, B complement universal set minus B. Universal set लिखेंगे, sign of minus and set B. 2 6 8 10 14 and 18. इसमें से हम universal set में से इसको माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 and 20. ओके, अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी. अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो हमने ये दोनों फाइंड कर लिए. अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन करना है. ओके, ए कॉम्प्लीमेंट साइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट. इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं. सो 3 इज़ कॉमन इन बोथ सेट्स, 3 5 इज़ ऑल्सो कॉमन, 7 इज़ कॉमन, 9 11
11 is also common, 12, 12, 13, 13 is also common, 15, 17 and 19. This is our A complement intersection B complement. Okay, so the answer of left hand side is A union B over complement, and the answer of left hand side is A complement intersection B complement. देखें दोनों का आंसर हमारा सेम आया है, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19 सेम एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं हमारे. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड. This is the second property of De Morgan's law, which is A intersection B over complement is equal to A complement union B complement. So first of all we will solve left hand side. In left hand side we have A intersection B in brackets. So if we will solve first of all we will solve bracket A, the set A, sign of intersection, and set B. In intersection we will take only common element. 2 is common in both set, 8 is common, and 10 is also common in both sets. So this is our A intersection B. Okay, now we will find A intersection B over complement. कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ. जिस भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं. सो यूनिवर्सल सेट माइनस A इंटरसेक्शन B जो हमने यहाँ पे फाइंड किया. 2, 8, 10 हम इस वाले यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे. बाकी रिमेनिंग एलिमेंट हमारे A इंटरसेक्शन B ओवर कॉम्प्लीमेंट. दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड. यह सॉल्व हो गया. नाउ राइट हैंड साइड A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट हम ऊपर फाइंड कर चुके थे, तो बस मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली A कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है. यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट भी हम यहाँ पे फाइंड करके आ चुके हैं पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमने उसका आंसर ले लिया, ब्रिंग आउट कर लिया है. A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. यूनियन में हम दोनों सेट्स को मर्ज कर देते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी एलिमेंट. ओके, सो और सीरियल का ख्याल रखते हैं. 1, 3, 4, 5, 6 यहाँ से लेंगे इस वाले सेट में से. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. This is our right hand side. Okay, so left hand side answer is, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, एंड दिस इज़ आवर right hand side answer. Both answers are same, so left hand side is equal to right hand side, hence proved. Okay, now we are going to solve question number 21. Verify the commutative property of union and intersection for the following sets. In commutative property we have only two sets, A and B. Okay, A and B commutative property है हमारी A union B is equal to B union A. ये आपको याद करनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज़. A union B is equal to B union A. So this is our left hand side and right hand side. So first of all we will solve left hand side A union B. तो सबसे पहले हम सेट लिखेंगे A union B. In union we will merge both sets together without repeating any element. So 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 9. This is our left hand side. Okay, right hand side में B union A, 3, 5, 7, 9 union set A. So in union we will merge both sets. 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे as it is लिख दिए. 7 and 9. This is our right hand side. So left hand side is equal to right hand side. Both answers are same, hence proved. Okay, commutative property of intersection. अब इसी को हम intersection में solve करेंगे. A intersection B is equal to B intersection A. So left hand side is A intersection B. So first of all we will write set A, sign of intersection, and set B. In intersection we will take only common element. So 3 and 5 are common in both sets. So this is our left hand side. B intersection A, set B intersection A. Common set elements लेंगे हम यहाँ से भी. 3 is common and 5 is also common. So this is our right hand side. Left hand side is equal to right hand side, hence proved. 21 has two parts, A parts and B part. A part हम सॉल्व कर चुके हैं. B part में हमें सेट दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको सबसे पहले हम सेट को कन्वर्ट करेंगे
टेबुलर फॉर्म में, उसके बाद हम फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सेट ए है हमारे पास, a is equal to x such that x is a member of positive integers and x is less than or equal to 5। ओके, तो हमने इसको पहले टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। 5 और 5 से छोटे तमाम एलिमेंट्स लेने हैं, लेस देन और इक्वल टू 5। सो 5 से छोटे तमाम एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे, 1 2 3 4 एंड 5। जब इसके नीचे ये साइन लगी हुई हो तो इसका मतलब होता है इसको भी हमने साथ में लेना है। ओके, द सेट बी इज़ x such that x is a member of positive integers and 1 is greater than or equal to 1 and x is less than or equal to 4। यानी 1 समेत हमें 1 से बड़े और 4 समेत 4 से छोटे तमाम एलिमेंट लेने हैं। तो 1 2 3 एंड 4। इस सेट को मैंने कन्वर्ट कर दिया है टेबुलर फॉर्म में। प्रोसीजर सारा हमारा सेम है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। यहाँ पे आपको सॉल्व हुई हुई नज़र आ रही होगी। आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा, सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करेंगे आप लोग। तो आप यहाँ से देख लें, ये सॉल्व हुई हुई है, आपको इसको खुद से सॉल्व करना है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें 3 सेट्स गिवन है A B C, और जब हमारे पास 3 सेट गिवन होते हैं तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, A पार्ट उसका। ओके, so first of all we will solve left hand side, A union B union C। so A union B union C is equal to the set A, the sign of union। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो उसके अंदर हमें ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट मौजूद है, तो हम इसके अलावा एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। सो B यूनियन C, इन दोनों का हम पहले यूनियन फाइंड करेंगे। ए एज इट इज़ उतार देंगे, 1 2 3 4 5, द साइन ऑफ यूनियन, इन दोनों का हम यूनियन फाइंड कर लेंगे। 2 4 6 8 10 एंड 12, यहाँ पे हमने इसका इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लिया। ओके, और ए हमने एज इट इज़ यहाँ पे ब्रिंग आउट कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा बी यूनियन सी सेट है। सो अब इन दोनों का यूनियन कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 8 10 12, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। ओके, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व। ओके, राइट हैंड साइड इज़ ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हमारा ब्रैकेट में है, तो हम इसके लिए कर्ली ब्रैकेट तो हमें सेट के साथ लगाना होता है, तो इसलिए हमने इसका स्क्वायर ब्रैकेट लिया, सेट ऑफ ए यूनियन सेट बी। ओके, देन यूनियन set C। Okay, now first of all we will solve A union B because it is in round bracket. So first of all we will solve round bracket, 1 2 3 4 5 union 2 4 6 8, इन दोनों का हम यूनियन कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 8 यूनियन, और सेट C हम एज इट इज़ यहाँ पे ब्रिंग आउट कर लेंगे। अब हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे, A यूनियन B यूनियन C। ओके, 1 2 3 4 5 6 8 10 and 12। okay, this is our right hand side, so left hand side is equal to right hand side, hence proved। associative property of union has been done। okay, now we will solve associative property of intersection of same sets। जो सेट्स हमने ऊपर यूज़ किए वही सेट यहाँ पे यूज़ करेंगे। A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। so first of all we will solve left hand side। in left hand side we have A intersection B intersection C। हमारा प्रोसीजर सारा सेम है, यहाँ पे हम सेट A लिखेंगे, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमारा राउंड ब्रैकेट में, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। एज A इंटरसेक्शन हम एज इट इज़ उतार लेंगे, B इंटरसेक्शन C को हम सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन में हम ओनली कॉमन एलिमेंट लेते हैं, सो 4 इज़ कॉमन इन बोथ सेट एंड 8 इज़ ऑल्सो कॉमन, सो दिस इज़ आवर B इंटरसेक्शन C। ओके, नाउ A इंटरसेक्शन हमने ब्रिंग आउट किया था, अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सो 4 इज़ कॉमन इन बोथ सेट, सो दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पे हमें हमारा राउंड ब्रैकेट में है A इंटरसेक्शन B, सो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सेट हम तमाम इसी तरह लिख लेंगे। सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B फाइंड करेंगे, सो
ए में हमारे पास कॉमन है 2 और बी में भी कॉमन है, तो ये हमारा 2 कॉमन हो गया दोनों सेट्स का। सो 4 इज़ ऑल्सो कॉमन, सो दिस इज़ आवर ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन सी हम ऐसे ही ब्रिंग आउट कर लेंगे। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। सो 2 and 4, 4, 8 and 12, सो इसमें कॉमन क्या है हमारा 4, सो दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हैज़ प्रूव्ड। बी पार्ट दिया हुआ था, उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में चेंज किया था। इसको भी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में कन्वर्ट करना है। ये यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये आप नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसके बी पार्ट को आपने खुद ही सॉल्व करना है, सेट मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिए हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 and 3। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन थ्रू दीज 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन के लिए हमें ये 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। थ्रू दीज सेट्स वी हैव टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस। ओके, distributive properties, there are 2 types of distributive properties. Distributive property of union over intersection, A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल होना चाहिए और ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसमें इंटरसेक्शन और उसके साथ ओवर यूनियन यूज़ होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ये देखें स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम इसको ब्रैकेट के बाहर वाले को ए इंटरसेक्शन बी यानी बी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में हमारे पास यूनियन की साइन आएगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके ओके, पार्ट 2 इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हमने यहाँ पे इसका सेट लिख लिया है, प्रॉपर्टी लिख ली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो वी हैव टू राइट द सेट ए साइन ऑफ यूनियन। अब यहाँ पे हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि हमें सेट्स के भी ब्रैकेट गिवन होते हैं। सो सेट बी साइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड सेट सी। सेट ए एज इट इज़ हम इसको ब्रिंग आउट कर लेंगे, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हम पहले सॉल्व करेंगे। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। सो 4 इज़ कॉमन इन सेट बी एंड सी and 8 is also common, so this is our B intersection C. Okay, A union B intersection C, ये हमारा B intersection C वाला सेट है। अभी हम इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे। Now in union we have to merge both sets together, 1 2 3 4 5 and 8. This is our left hand side. Okay, now we are moved towards our right hand side which is A union B intersection A union C। अब यहाँ पे हमारे पास 2 राउंड ब्रैकेट हैं, तो पहले हम इस वाले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे एंड देन इस वाले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उनके आंसर्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। A यूनियन B, इन दोनों का हम यूनियन फाइंड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। यहाँ पे हमने इसका यूनियन फाइंड कर लिया। ओके, नाउ वी आर मूव टूवर्ड्स A यूनियन C, 1 2 3 4 5 सेट ए यूनियन सी। इन दोनों का हम यूनियन फाइंड करेंगे विदाउट रिपीटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, और सीरियल का हमने ख्याल रखना है, 1 2 3 4 5 देन 8 10 12। दिस इज़ आवर ए यूनियन सी। नाउ वी हैव टू सॉल्व ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमने फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। दिस इज़ ए यूनियन बी सेट साइन ऑफ इंटरसेक्शन A union C which we have find here. Okay, अब intersection में we have to take only common element, 1 1 2 2 3 3 4 is common, 5 is common and 8 is also common. So this is our A union B intersection A union C. This is our right hand side and this is our left hand side. Both answers are same, 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 8. So left hand side is equal to right hand side, hence proved. This is our question number 3, distributive property of intersection over union.
ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लिख ली है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. So we are going to solve left hand side, which is a intersection b union c. So we have to write set A, sign of intersection. We have to solve bracket first. So B union C, set B union C. Okay, now we are going to solve round bracket. So A as it is bring out कर लेंगे हम intersection. इन दोनों का हमने union find करना है. 2, 4, 6, 8, 10 and 12. This is our B union C. Now we are going to solve A intersection B union C. अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है. इन इंटरसेक्शन वी विल टेक ओनली कॉमन एलिमेंट. सो 2 इज़ कॉमन इन बोथ साइड्स and 4 is also common. So this is our left hand side. Now solve right hand side, which is A intersection B union A intersection C. So first of all we will solve A intersection B. A, sign of intersection, set B. Okay, 2 is common in both sides, 4 is also common. So this is our A intersection B. Now A intersection C, set A, sign of intersection and set C. So 4 is common in both sides. So this is our A intersection C. Now A intersection B भी हमें फाइंड हो गया, A intersection C भी. अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है. A intersection B सेट, साइन ऑफ यूनियन A intersection C. ओके, इन दोनों का अब हमने यूनियन फाइंड करना है. इन यूनियन वी विल मर्ज बोथ साइड्स टुगेदर. सो 2 and 4, this is our right hand side. So left hand side is equal to right hand side. Both answers are same, so hence proved. Left hand side is equal to right hand side. This is our A union C. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 and 12. अब now we have to solve A union B intersection A union C. ये हमने फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया. अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है. This is A union B set, sign of intersection A union C, which we have find here. Okay, अब intersection में we have to take only common element. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 is common, 5 is common and 8 is also common. So this is our A union B intersection A union C. This is our right hand side and this is our left hand side. Both answers are same. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. So left hand side is equal to right hand side, hence proved. This is our question number 3, distributive property of intersection over union. ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लिख ली है, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. So we are going to solve left hand side, which is A intersection B union C. So we have to write set A, sign of intersection. We have to solve bracket first. So B union C, set B union C. Okay, now we are going to solve round bracket. So A as it is bring out कर लेंगे हम intersection. इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है. 2, 4, 6, 8, 10 and 12. This is our B union C. Now we are going to solve A intersection B union C. अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है. इन इंटरसेक्शन वी विल टेक ओनली कॉमन एलिमेंट. सो 2 इज़ कॉमन इन बोथ साइड्स and 4 is also common. So this is our left hand side. Now solve right hand side, which is A intersection B union A intersection C. So first of all we will solve A intersection B. A, sign of intersection, set B. Okay, 2 is common in both sides, 4 is also common. So this is our A intersection B. Now A intersection C, set A, sign of intersection and set C. So 4 is common in both sides. So this is our A intersection C. Now A intersection B भी हमें फाइंड हो गया, A intersection C भी. अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है. A intersection B सेट, साइन ऑफ यूनियन A intersection C. ओके, इन दोनों का अब हमने यूनियन फाइंड करना है. इन यूनियन वी विल मर्ज बोथ साइड्स टुगेदर. सो 2 and 4, this is our right hand side. So left hand side is equal to right hand side. Both answers are same, so hence proved. Left hand side is equal to right hand side. Students, 1.2 has been completed here. Okay,
In next lecture we are going to start 1.3. Till then, take care. Allah Hafiz.